In the previous lecture, we did what are capacitors, and today is lecture number 4 of electrostatics, chapter number 8 of 12th standard. A very, very important, crucial chapter for all examinations. So if you look at statics last lecture, lecture number 3, we studied about what is the principle of a capacitor. What is the principle of a capacitor, guys? What is the principle of a capacitor? Very good. So Isha says Q is equal to CV. It has the property to store charge. Very good. So it stores charge, it does not dissipate, right? So it does not dissipate. Very good. So others are also answering. Bhakti, Aditya, I can see Deepak. So there are too many chats. I can't read all names. So we have studied different types of capacitor. We looked at fixed capacitor, we looked at polarized capacitor, and we looked at variable capacitor. Out of that, we are studying the fixed capacitor. We saw the applications, that it was in a fan. We saw the case of a motor. We studied what is the definition of a capacitor, saying that it is made up of two words: capacity of a conductor to store charge. We looked at the principle of a capacitor. We looked at its unit. We looked at its dimension. Then we looked at how we can visualize the capacitor, कि कैसे सोचने का जब आप capacitor के बारे में सोचते हैं, charging and discharging, right? So we looked at the principle of a capacitor, कि जैसे आप plates को parallelly रखते जाते हैं तो capacity कम होती जाती है, right? So we looked at C3 which is greater than C2 which is greater than C1. फिर हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था, ये दो डायग्राम्स के जरिए हमने आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ 3 कैपेसिटर है और सेकेंड केस में 2 कैपेसिटर था, राइट? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है. So now let us come to, have we done capacitors in series, guys? Have we done capacitors in series or we did capacitors in parallel? Please check your notebooks. What did we do? We did capacitors in series and both? Okay, very good. Great. That's great. So we did both capacitors in series and parallel. So I'm just writing the formula that probably you already have in your book, is that if it is CS, if there are only two capacitors, I can take product upon sum, right? In the second case, when they are in parallel, I have to add them up, right? If the capacitors are more, then you use the formula 1 upon CS, and all of them are different, then you use the formula 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Fourth, CS is equal to N times of C. Is it correct? Or C by N? Yes, it should have been C by N. And CP is equal to N times of C. Right? So when I talk about maximum capacity, then I am talking about CP. And when I talk about minimum capacity, then I am talking about CS. Right? Please take it down, put the list of formula in your book, then we can proceed. Those who have finished can give me a relation between CS and CP. Can you give me a relation between CS and CP? No, I don't mean greater. I want that if CS, ये कब use करते हैं? कब use करते हैं? ये वाला formula कब use करते हैं? ये जो red में marked है, उसको कब use करते हैं? When can we use it? We can only use it if
all the capacitors are same. सब कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, जब ये हो जाएगा बताएं. ओके, somebody has given Bhavya, very good. I want the relation between CS and CP if CS is equal to C by N and CP is equal to NC. Yeah, please tell me when it's done. Okay, I have Aditya also giving me the answer. Yeah. You have to give me a relation. देखो, CS is equal to C upon N and CP is equal to NC. तो दोनों के बीच आप रिलेशन लेके आ सकते हैं क्या? बिकॉज क्वेश्चन कैसे पूछते पता है? क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी का वैल्यू देते हैं, मिनिमम कैपेसिटी का वैल्यू देते हैं और पूछते हैं कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे, यू नो. वेरी गुड. सो आई कैन सी दैट मेनी हैव कम आउट विद द आंसर. सो CP और CS अगर आप देखेंगे ना, तो CP is equal to NC and CS is equal to C upon N, right? तो what should I write here? CP is equal to N times of, ये C जो है क्या लिख सकते हैं? N into CS लिख सकते हैं. So can I say CP is equal to N square CS? Please take this down. This is a very important formula. Very, very important formula. Suppose मैंने आपको कहा कि the maximum capacity, no, some problem is given to you और आपको ऐसे like बोला कि maximum capacity जो है, maximum capacity is 625 microfarad and minimum capacity is 25 microfarad. How many number of capacitors are there? How many number of capacitors are there? Then you have to give me the answer based on this formula. So Bhavya and Aditya have already answered. What about others? मैक्सिमम कैपेसिटी बोला तो वो सीपी का वैल्यू होता है और मैंने आपको फॉर्मूला में दे दिया. ओके, लोग अलग अलग आंसर दे रहे. 30 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 29 बोल रहा है. क्या भाई, क्या चालू है? CP upon CS is equal to N square. CP is 625 upon 25
is equal to n square, and therefore n square is equal to 25, right? So n क्या होगा 5. 5 कैपेसिटर ही रहेंगे वहां पे. तो सीपी और सीएस आपको आना चाहिए. तो whenever I say maximum capacity, when I say minimum capacity, so you should be able to do this. Please write it down. This is very important. Please write it down. नो दिव्या, सीपी इज मैक्सिमम ना बेटा. पैरेलल में ऐड होता है, बढ़ता है ना, उल्टा होता है रेजिस्टर का. रेजिस्टर का पैरेलल कम होता है और सीरीज में बढ़ता है. इधर उल्टा होता है. मिनिमम कैपेसिटी मतलब सीएस दिया है. डन एवरीबॉडी? Completed everybody? Okay. Yeah. So now we are going to move ahead and see some numericals which are a combination of series and parallel. So what I've tried to do here is I've tried to bring different types together. So when you open your Marvel or you open your USS or whatever, Pradeep or whatever you're referring to, you should be able to solve combination of capacitors. So combination of capacitors you can see in different places. Combination of capacitors is something that is very, very important. So let's come to the first question, which involves the combination of capacitors. Look at this circuit out here. Look at this circuit out here. If I ask you what is the equivalent capacitance, मतलब ये A point है और ये B point है, and I'm asking you find equivalent, मतलब total equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance between A and B. Right? So now if you look at this, 1 and 2 are in parallel.
दिख रहा है 1 एंड 2 पैरेलल में दिख रहा है सबको. सो इसका मतलब है 1 एंड 2 अगर पैरेलल में जाएगा देन यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है यहाँ पर 3 और ये 4. सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 3 microfarad and this is 4 microfarad. 3 and 4 microfarad. Now 3 और 4 कैसे connected है, सीरीज में, right? So this is CS is equal to C1 into C2 upon C1 plus C. That means this is going to be 3 into 4 upon 3 plus 4. तो आपका final answer, which is the series and which is equivalent also, the total between A and B, इसको CAB भी लिख सकते हैं, is going to be nothing but 12 upon 7 microfarad. Clear? This is 12 upon 7 microfarad. And this is the final answer of this, which is type 1. Very simple series parallel circuit. Take it down, guys. फॉर्मूला वाइज नहीं है, इट इज जस्ट मिक्स ऑफ बोथ ना, जो एग्जाम में पूछते हैं. 4 क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है. Who is this asking 3 and 4? राज, सो रहे थे आप, जाग जाओ, आ जाओ वापस. ये 4 यहाँ का 4 है और 2 + 1 3 है. 2 + 1 3 है बेटा. आप कहाँ गए राज, आप सो रहे थे, जग जाओ, चाय पी लो. उसका सवाल है 4 3 और 4 कहाँ से है, मैं उठा के लाई वहां से. ये 4 यहाँ का है ना और 3 ये 2 + 1 और ये कहाँ से आएगी. जाग जाओ सब लोग, चाय पी लो, कुछ खा लो, फ्रेश हो जाओ, पानी पी लो. थोड़ा उठ के बैठो, बैठे रहते हो ना इसलिए, नाचो थोड़ा और फिर सुनो फिजिक्स. उठ जाओ फिर बैठ जाओ, फिर उठ जाओ फिर बैठ जाओ, फिर उठ जाओ फिर बैठ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे. Can I go to the next question? Are you all here? I have no idea. I should be taking attendance, you know. So then I will know if everyone is present or not. हाँ सुपर फ्रेश है, दिख रहा है मेरे को. हाँ बड़े सुपर फ्रेश हो. हम्म. मस्ती करने में सुपर फ्रेश हो तुम लोग. हाँ चलो, कैन आई गो टू द सेकेंड टाइप? हाँ मेरे को थम्स अप वाला है ना, थम्स अप वाला दिखाओ, मैं देखती हूँ कि सब लोग प्रेजेंट है कि नहीं. वो क्या है तुम लोग के इसमें इमोजी रहेगा ना. हाँ मुझे हाथ दिख रहा है अभी. अभी किसके हाथ नहीं दिख रहे मैं बताती हूँ, तो वो नहीं है वहां पे. इधर है. अभी देखो हाथ आ रहे सडनली.
मुझे ना कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाथ दिखाओ हाथ. I cannot see some of the hands. Meena Dagli, I can't see some of the hands. What is this? Sakshi, Yash, Malviya. Okay. So let me go to the next question. Okay. Let's take a look at this one. Are you ready? Are you ready, guys? Okay, now look at this particular question and I have to find the total capacitance here, or I have to find the total equivalent capacitance here. तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, ये भी सीरीज में है. तो सीरीज में अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो कैन आई राइट, जो ऊपर वाला है ये दोनों को मैं CS1 बोल रही हूँ और नीचे वाला, सो CS1 कैन आई राइट C अपॉन N which is 2/2 which is 1 माइक्रो या 1 फैरेड है यहाँ पे, तो 1 फैरेड. अब ये जो नीचे वाला है उसमें से आपको दिख रहा है कि दो वैल्यू सेम है, 3 समझ रहे हैं क्या, 3 दो वैल्यू सेम है, तो उसका मैं लिख सकती हूँ 3/2, चलेगा. तो CS2 विल बी नथिंग बट 3/2 into 6 upon 3/2 plus 6, चलेगा. सो ये 2 3s गया. So what is CS equal to 3 3s 9 upon 3/2 plus 6 कितना होता है, 15/2 आएगा, right? If I'm not mistaken, am I correct? So this will become nothing but, ये CS2 चल रहा है, CS2 का कैलकुलेशन चल रहा है, तो CS2 मुझे मिल रहा है 18/15 which looks like a 3 times 6/5 आ रहा है 6/5. इसका ये मतलब है कि ये जो ऊपर वाला 2 था वो अब 1 हो गया है, और जो नीचे का जो 3 कैपेसिटर था वो हो गया है 6/5, चलेगा. और ये कनेक्टेड है टू योर 5V बैटरी. अब इफ आई वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 और 6/5 कैसे कनेक्टेड है, 1 plus 6/5 हो जाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 11/5 फैरेड, 11/5 फैरेड. Is it done, everybody? Deepak Yadav, come on. Okay. Yeah, I'll wait. Yes.
अर्चना गुप्ता, अविनाश यादव, सुधीर मौर्य. I can't see some of these people. सेम लोग आंसर करते, तुम लोग सब कहाँ हो? इंद्रेश यादव, श्रेत कनोजिया. मैंने किया बेटा अपलोड, आज किया था, थोड़े समय के लिए किया था. मानसी चचे, लेस्टर फर्नांडिस. I'm just taking these names because I've never seen them answering. शिवम पंडित. Yes, we'll discuss about that, ईशान. अपकमिंग में वो क्लियर हो जाएगा, उसका एक डेरिवेशन आएगा. 2 डेरिवेशन है लेक्चर नंबर 5 में. विराज चौहान, तेजस. Is it completed, everybody? Done? Okay. Let's move on to the next question. ये टाइप 3 है, तो ये टाइप 2 था, ये टाइप 1 था, जो बहुत ही सिंपल था. लेट्स कम टू टाइप 3. जैसे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, नो, व्हेनेवर यू सी समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ सर्किट. तो एक तो यहाँ पर whenever you see, you know how this is drawn, no, it is drawn like this, 1 2 3, ऐसे 3 ड्रॉ किए गए हैं. यहाँ A है, यहाँ B है. सेम चीज आप रेजिस्टर्स में भी देख सकते हैं. यहाँ C1 है, C2 है, C3 है. यहाँ से लेके यहाँ तक आप कैरी करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप डालेंगे, राइट? प्लस माइनस की बात ही नहीं आ रही है ना यहाँ पे. प्लस माइनस हम कर ही नहीं रहे, हम फिक्स्ड वाला कैपेसिटर कर रहे हैं, पोलराइज वाला नहीं कर रहे. सत्यवीर, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो नेगेटिव पॉजिटिव साइन हियर, वी आर डूइंग फिक्स्ड कैपेसिटर्स राइट नाउ. वो तुम इसमें करोगे ना, क्या तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करोगे सत्यवीर, इधर कुछ नहीं है सर. ठीक है, वो मैं बता दूंगी. अगर कुछ सर्किट वर्किट करना है वो तो करंट फाइंड आउट करेंगे. हम यहाँ करंट नहीं फाइंड आउट कर रहे, हम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा. वो जो आप बोल रहे हो ना, वो वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ की बात कर रहे हो आप. किरचॉफ नहीं लगा रहे इधर, ये तो वी आर जस्ट फाइंडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ओके. अच्छा, सो नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ आई हैव डिजाइंड इज, ये सारे वैल्यूज अगर सेम है, अगर ये सारे वैल्यूज सेम है, मतलब C1 C2, C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C5 is equal to C is equal to, you know, all the values are same. अगर सारे वैल्यू सेम है, which is equal to say 10 माइक्रोफैराड. ओके, तो क्वेश्चन वो ऊपर वाला नहीं, आप समझो कि सारे वैल्यू सेम है. देखो कैसे रखा है उसको पहले. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू नो. No, it's not a printing mistake. I am changing the question. Okay. So C1, C2, C3, C4, C5, C is 10 microfarad. अगर सारे वैल्यू सेम है, पहले ये सर्किट को देखो. यहाँ एक नोड दिखाई दे रहा है आपको. कैन यू सी अ नोड? नोड क्या होता है? जंक्शन. क्या आपको 2 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं? अब ध्यान से सुनना मैं क्या करूं. ये जंक्शन को C नाम दे रही हूं और ये जंक्शन को मैं D नाम दे रही हूं. ओके, एक जंक्शन C है और दूसरा जंक्शन D है.
C1, C2, C3, C4, C5, C is 10 माइक्रोफैराड। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो A होता है इसको इधर ही रखो, ये जो B होता है इसको यहां पर ही रखो, दिस इज A, दिस इज B। ऊपर C रखो और नीचे जो है D रखो पॉइंट, तो 4 पॉइंट हो गए। अब ध्यान से आपको बताना है मुझे, A और C के बीच कौन सा कैपेसिटर है? A और C के बीच कौन सा कैपेसिटर है, कौन बताएगा मुझे? A और C के बीच कौन सा कैपेसिटर है? एवरीवन कैन सी C1, सो A और C के बीच है C1। अच्छा, C और D के बीच कौन सा कैपेसिटर है? C और D के बीच कौन सा कैपेसिटर है? वेरी गुड, C2। तो देखो मैं C2 ड्रॉ करूं, ओके। तो C1 का काम हो गया, C2 का काम हो गया। D और B के बीच कौन सा कैपेसिटर है? D और B के बीच है C3, तो मैं C3 यहां ड्रॉ कर रही हूं, राइट। अच्छा, A और D के बीच कौन सा कैपेसिटर है? A और D के बीच कौन सा कैपेसिटर है? C4, तो C4 यहां आ गया। C और B के बीच कौन सा कैपेसिटर है? C और B के बीच कौन सा कैपेसिटर है? C5। क्या आपने अपने लाइफ में ऐसा सर्किट देखा है? Which circuit is this? Very good, Tejas is the first one to answer that. Which circuit is this? Which circuit is this? Okay, Bhavya has answered, Tejas has answered, Ishan has answered. I'm waiting for more people to answer. ये कौन सा सर्किट है? ऐसा आपने कहाँ देखा है? You have seen this kind of circuit. What kind of circuit is this? Bhakti has answered, this is the Wheatstone's bridge. Z. This is the Wheatstone's bridge. और अगर मैंने आपसे कहा है कि C1 सेम है, C5 सेम है, C3 सेम है, C2 सेम है, C4 सेम है, सब सेम है, इसका मतलब दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब दिस ब्रिज इज बैलेंस, मतलब बीच वाला जो कैपेसिटर है वो उड़ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये और ये बचेगा, कौन सा है ये? एक सी और एक सी यहाँ बचेगा, एक सी और एक सी यहाँ बचेगा, और ये सर्किट ऐसे हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है। डू यू एग्री? क्योंकि ये वाला सी रहेगा, ये वाला सी रहेगा और बीच वाला उड़ गया, तो ये सी और ये सी ऊपर रहेगा, ये सी और ये सी नीचे रहेगा, और सर्किट ऐसे दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? ऊपर वाले जो दो सी हैं, ऊपर वाले जो दो सी हैं वो क्या हो जाएंगे? ऊपर वाले जो दो सी हैं उसका क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है? नो तक्षिता, कैसे कनेक्टेड है वो दोनों? सीरीज में, सीरीज में ऐड नहीं होता। फाइनल आंसर बताओ मुझे, डोंट गिव मी इट अ सीरीज और पैरेलल। अभी बच्चे नहीं हो आप। सी और सी का फाइनल आंसर, इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होना चाहिए? आंसर 5, 10 नहीं, आई जस्ट वांट द फॉर्मूला। सी लिखा है मैंने, हैव आई पुट 10, 5? आई पुट सी सी। तो सी सी जब सीरीज में जाता है तो सी अपॉन एन करके बताओ। अरे वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हो तुम लोग? एन क्यों बता रहे मुझे? दो ही तो है कैपेसिटर। कम ऑन, टेल मी द आंसर। नो, आई डोंट वांट द आंसर 5। I don't want the answer as 5. I want to know C और C सीरीज में तो क्या लिखेंगे आप? C और C सीरीज में तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? जब C और C सीरीज में होता है तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? C लिखना चाहिए, C अपॉन 2 लिखना चाहिए। नीचे क्या लिखना चाहिए? C अपॉन 2। मैंने आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करने को बोला नहीं है। आप 10 या 5 को भूल जाएं, मैं C से बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू in the language of C. I did not say it is 10 and 10. Did I say? No. You just tell me the answer of C. अभी C by 2 and C by 2 is parallel.
अगर C/2 और C/2 पैरेलल है तो इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? अगर C/2 और C/2 पैरेलल है तो उसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? नो वर्षा, अगेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. आई हैव नॉट आस्क्ड वैल्यूज. नो मानव, नो वैल्यूज हियर प्लीज. C/2 पैरेलल टू C/2, अगर पैरेलल है तो C/2 और C/2 को क्या करना है? ऐड करो. C/2 प्लस C/2 का आंसर क्या होगा? C/2 प्लस C/2 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा, यस, आंसर होगा सी. आंसर क्या होगा? सी. आंसर क्या होगा? सी. और सी की वैल्यू अभी कितनी है? अभी सी की वैल्यू मुझे बताओ. सी की वैल्यू कितनी है? 10 है. यानी कि इसका आंसर क्या था? 10 माइक्रोफैरड. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन से कि जब C जो है, अगर अपने जो वैल्यूज हैं, मतलब आपके ये जो वैल्यूज हैं C1, C2, C3, C4, C5, अगर सारे वैल्यूज इक्वल होंगे और जितना उसकी वैल्यू होगी वही आपकी फाइनल आंसर होगी. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर आपके सारे वैल्यूज सेम है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज के सारे वैल्यूज अगर सेम है तो आपका फाइनल आंसर भी उससे मैच होगा. आर यू गेटिंग इट? नाउ टेल मी, ऐसा कौन सा कैपेसिटर है इस डायग्राम में जिसका वैल्यू अगर सेम नहीं है तो भी आंसर 10 होगा? ऐसा कौन सा कैपेसिटर है? वेरी गुड आदित्य. तो आदित्य ने पहले आंसर कर दिया. तुम लोग सोचो कौन सा कैपेसिटर है. अगर आपको याद है ये सारे कौन थे? ये कौन था? ए और सी के बीच यहाँ C1 था. सी और बी के बीच कौन था? C5 था. ए और डी के बीच कौन था? C4 था. यहाँ कौन था? C3 था. और ये C2 था. ऐसा यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट गाइस. यहाँ पर ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसका वैल्यू सेम होने पर यस, कौन सा कैपेसिटर है? C2. जब C2 की वैल्यू सेम रहती है, जब C2 की वैल्यू सेम रहती है तो, या डिफरेंट रहती है तो फिर भी आंसर आपका 10 माइक्रोफैराड ही है. क्योंकि बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे ही बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर चारों का वैल्यू सेम है तो इसका भी वैल्यू सेम ही रहेगा. गॉट इट? यस और नो? प्लीज टेक इट डाउन गाइस.
Is it over? The type 4. Let's look at type 4. Now, this kind of question is again very important. So now here, this is similar to a solved question in your textbook. This is similar to a solved question in the textbook. मतलब textbook में जो दिया है उससे एकदम similar है. मतलब ये करने के बाद आप उसको solve कर सकते हैं. So यहाँ पर क्या दिया है? आपको equivalent दिया है. That means 1 microfarad. C equivalent is 1 microfarad. C equivalent is 1 microfarad. और आपको पूछा है कि आप C फाइंड आउट करो. नाउ अगर आपको C फाइंड आउट करना है तो ये देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैसा है? पैरेलल. और ये 6 और 12 कैसा है? सीरीज. कैन यू सी इट? पहले पैरेलल और सीरीज सॉल्व करना है. तो आपको ऑलरेडी इक्विवेलेंट दिया है और आपको C ढूंढना है बिटवीन A एंड B. मतलब दिस इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस द टोटल इज 1 माइक्रोफैराड. तो यहाँ पर C, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, ये C होगा, ये 8 होगा. आई एम नॉट राइटिंग माइक्रोफैराड. 2 और 2 कैसा है? पैरेलल. तो यहाँ 4 हो जाएगा. यहाँ पर क्या दिया है? 1. और यहाँ पर कितना होगा? एनीबडी कैन टेल मी? दिस इज 4 माइक्रोफैराड. कैन एनीबडी टेल मी ये CS कितना होगा? इट विल बी 6 into 12 अपॉन 6 plus 12. सो CS कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी हाउ मच इट इज?
कितना आ रहा है? 4 फैरेड आ रहा है सबको? 4 फैरेड आया, 4 माइक्रो फैरेड आ रहा है सबको? यस, सो ये 4 हो गया। अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है? ओके, अभी क्या दिख रहा है जो इजी सॉल्व कर सकते हैं? एकदम इजी। पैरेलल पहले ढूंढने का, पैरेलल पहले ढूंढेंगे तो बेटर होता है ना। कौन पैरेलल है? कौन पैरेलल है? सिर्फ पैरेलल बोल के क्या फायदा? कौन है पैरेलल? 4 एंड 4, यस, 4 और 4 पैरेलल है। तो वापस इसको रीड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये 1 है, ये हो गया 8। अब ये दोनों सीरीज में है, तो CS2 लिख देते हो, या जस्ट कॉल इट दिस एज CS1। CS2 हो जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 8 + 4। कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी ये कितना आ रहा है? 8 फोर कितना होता है? 32/12, बराबर ना? 8/3 लिख सकते हैं 4 टाइम्स में। सो ये 8/3 हो गया। समझ रहा है? आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी। Yeah, so this takes time. It is like this only, and you have to have the patience. ये अपना 8/3 हो गया यहाँ पे, 8/3 माइक्रो फैरेड हो गया। यहाँ सी है, कैन यू सी ये दोनों भी सीरीज में है? अच्छा, तो ये प्रोडक्ट अपॉन सम से फटाक से हो जाएगा, राइट? ये कितना हो जाएगा? 8/8 इंटू 1 अपॉन, सो कैन आई से 8/9 माइक्रो फैरेड। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? अब क्या है? अब क्या दिख रहा है आपको? अब क्या दिख रहा है? 8/3 माइक्रो फैरेड और 8/9 माइक्रो फैरेड पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं? सो 8/3 माइक्रो फैरेड और 8/9 माइक्रो फैरेड को पैरेलल में ले लो। सो क्या आएगा? मुझे बताओ क्या आएगा? तो आपका फाइनल सर्किट कुछ ऐसे आएगा। यहाँ सी बचेगा, और यहाँ क्या आने वाला है? 8/3 प्लस 8/9, ये 324 + 8, 32/9 कुछ होगा ना? ये ऐसे आ रहा है 32/9 माइक्रोफेरेड। सो ये 32/9 माइक्रोफेरेड होगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी।
आया सबको 32 माइक्रोफैरड आ रहा है. अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? हाउ इज C एंड 32/9 माइक्रोफैरड कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. वेरी गुड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. और हमें बताया गया है कि C, द टोटल जो आ रहा है दैट इज C इक्विवेलेंट, कितना दिया गया था? 1 दिया गया था. सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू C, और ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है. So what should I do? What should I write? So I'm writing like this: 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C plus 1 upon 32/9. 32/9 था ना? Right? So ये हो जाएगा 1 upon 1 is equal to 1 upon C plus 9 upon 32. Right? So ये क्या हो जाएगा? Can I say 1 upon C is equal to 1 minus 9 upon 32? So this is equal to 32 minus 9 upon 32. So 1 upon C is equal to, ये कितना आएगा? How much is this going to come? 23 आएगा upon 32. इसका मतलब है C का वैल्यू कितना है? C is 32 upon 23 माइक्रोफैरड. दिस इज द फाइनल आंसर. ये ऐसा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया है. आपके बुक में 204 पे है, मुझे लग रहा है 204 पे आपको ऐसे ही सीरीज और पैरेलल के एक्सप्लेनेशन के बाद दिया है. सो उसका वैल्यूज थोड़ा सा अलग होगा. प्लीज टेक इट डाउन एवरीबॉडी, प्लीज टेक इट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप 4. विच वन? वर्षा, वर्षा मोदी, विच वन यू वांट? सी बहुत क्लियर है. 2 और 2 क्या है बेटा? पैरेलल में है तो उसको 4 लिखा है यहाँ पे. 6 और 12 कैसा है? सीरीज में है तो उससे 4 आया. फिर ये 4 और ये 4 जो है उसको हमने क्या किया है? पैरेलल में लिया है तो उसका आया 8 यहाँ पर, ये 8 है उसका. फिर उसके बाद जो 1 बचा वो इधर लिखा है, और 8 और 4 जो है वो 8/3 हो जाएगा.
और जो 1 और 8 है वो 8/9 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, रेड्यूस कर रहे हैं, सर्किट को रेड्यूस कर रहे हैं, ताकि एक आपने रेजिस्टर्स में भी ऐसा किया रहेगा ना, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बड़े बड़े जो सर्किट्स होते हैं उसको रेड्यूस करके हमें सिंगल एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है। तो रेजिस्टर के जगह पे हम इतना ही कर रहे हैं कि हम ये लेके आ रहे हैं, एक कैपेसिटर्स लेके आ रहे हैं और कैपेसिटर को सॉल्व करके लेके आ रहे हैं, बस इतना ही है। इज इट कंप्लीटेड? Shall I turn the slide? The next slide. नो, नॉट नेसेसरी मानो, फ्रैक्शन में ही रखो, डेसिमल में रखने की जरूरत नहीं है। आंसर वैसे भी वो फ्रैक्शन में ही देंगे, डेसिमल में नहीं देंगे।
Done, everybody? Is it completed? Okay. So this is the next type, that is type number 5. So we have done 4 types now. Let's come to type number 5. So I'm just erasing this. Can I erase this slide? Can I rub this slide off? Yeah. So I'm just erasing the slide over here. Look at 2 networks in front of you. You know, these are actually electrical engineering. When we used to do engineering, we used to call it as ladder networks. You know, ये ladder की तरह है. You know, it keeps on repeating itself. It's a recurring kind of network. So I'm going to do the left one and you're going to do the right one. Deal? I'm going to do the left one and you're going to do the right one. So we always start from the right side. So हम imagine करके लेते हैं कि सारे capacitor के values same है. Okay, तो हम हमेशा कहाँ से start करते हैं? अगर ये AB है तो हम हमेशा right side से चालू करेंगे. ये तीनों कैसे connected है? ये तीनों कैसे connected है? सीरीज. वेरी गुड. तो ये कैसे होगा? ये सी, ये सी, ये सी, और ये कैसा होगा? कैन आई से दिस इज C/3? ये सी होगा, ये सी होगा और ये सी होगा. ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल. सो दिस इज गोइंग टू बी सी. ये कैसे कनेक्टेड होगा? और ये ऐसा हो जाएगा. So this is going to be C, this is going to be C, and this is going to be 4C/3. अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज. तो C इक्विवेलेंट इज C/2 into 4C/3 upon C/2 plus 4C/3. करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर. इट विल बिकम 4C² upon 6 upon, यहाँ क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 11C/6. यू एग्री? 11C/6. 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा. मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर है 4C/11 माइक्रोफैरड. ये मेरा फाइनल आंसर है 4C/11. मैंने कुछ नहीं किया है. यहाँ पर ये तीनों जो है, ये तीनों जो है वो कैसे हैं? दीज 3 आर इन सीरीज. सीरीज को लगाया यहाँ C/3. फिर क्या हुआ? फिर मेरा ये जो C है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी यहाँ C है. तो ये C/3 और ये C क्या हो गया? 4C/3. करेक्ट? अब आपको 4C/3 C और C कैसे दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है, बट दो वैल्यू तो सेम है. और जब वो सेम रहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला C/n. इसका मतलब है C और C सेम है तो C/2 हो जाएगा. वही मैंने किया, C और C को कंबाइन किया, इसलिए ये हो गया मेरा C/2 और ये मेरा 4C/3 और ये C/2 प्लस 4C/3. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आता है? 4C/11. 4C/11 is the final answer. Could you please copy it down and tell me the answer for the next one?
I'm waiting for the final answer. Okay, so I'm getting some answers here. Some are saying second one I'm asking. Okay, some have got the answer. I'm waiting for others also. I want the answer for the second one. So I'm writing down your names with the answers that you have given me. I'm waiting for the one who will give me the final answer. Yeah, so I can see many people are trying. So this is series, which is going to be C by 3, right? इतना तक तो सबको आया. फिर C by 3 C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, C है, C है, C. So this is going to be nothing but C, C, C. यहाँ पर भी C है. यहाँ पर क्या आने वाला है ये आपको पता है क्योंकि आपने वो ऑलमोस्ट सॉल्व किया है यहाँ पे. तो C by 3 और ये 4C by 3 होगा. ये C है, ये C है. इतना तो हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया. मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिया. तो लास्ट स्टेप आपको सिर्फ इतना करना था कि एक और 2 C डालना था यहाँ. सो ये C है, ये C है और ये 4C by 11 होता है. बराबर ना? I had already solved part of it, right? So now all this again, what will be your CS? It's going to be C by 2 into 4C by 11 upon C by 2 plus 4C by 11. So देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. This will be 4C square upon 22 upon ये क्या आएगा 11 19C कुछ आता है क्या नीचे. So C is 4C by 3. It goes with AC by 3, ये 4C by 3, 4C by 3 C और C हो गया अपना. लेट मी जस्ट चेक. ये हो गया 4C by 3 और ये आया C by 2. C by 2 और 4C by 3 हो गया 4C by 11. So 4C by 11 हो गया और ये रहा 22 कैंसिल हो जाएगा. Okay. So are you getting 4C by 4C by 19? Are you getting 4C by 19? कहाँ बेटा? चेक कर लो if I have made any mistake. Because यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि C और C by 3 है. C by 3 C के गया तो 4C by 3 है. उसके बाद C by 2 है. C by 2 सीरीज में गया तो 4C by 11 है. और 4C by 11 जो है वो C by 2. Yes, so it should be this. नहीं, रेसिप्रोकल 22 लिया ना बेटा. नो बेटा, ये तीनों का जो ये तीनों सीरीज में है ना दिव्या. तो जो मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया था वो डाला है यहाँ पे. ये तीनों जो सीरीज में है वो 4C by 11 डाला है बेटा. जो तू पूछ रही है ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया था ना. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था 4C यही है ना, यही पैटर्न है. पैटर्न देखो यहाँ पे ये और ये सेम है ना. जो मैंने सर्कल किया ब्लैक में दोनों तरफ देखो सेम है. देख लो तो 4C by 11 होगा ना. और फिर 2C है ना, सीरीज में है आदित्य. सीरीज में है, पैरेलल नहीं. आप करंट इलेक्ट्रिसिटी सोच रहे हैं. वेयर 3C है? तेरे को 3C कहाँ दिख रहा है बेटा? सब सारे वैल्यू C है ना बेटा. सारे वैल्यू C है ना. प्लीज टेक इट डाउन एवरीबॉडी.
सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस थोड़ा. मैंने आपको टाइप्स बता दिया है. आप जो भी बुक है आपके पास, वो बुक से आप उसको प्लीज यू नो एक एक करके आप चेक करें. नहीं दिव्या, 3 लिया है ना, 2 कैपेसिटर का मिलके C/2 आ रहा है बेटा. कहाँ से C/2 आया फिर? इसका C और ये C, आई हैव यूज द फॉर्मूला C/N विच इज C/2. तो 2 को रेड्यूस करके 1 किया. दिव्या, 2 को रेड्यूस करके 1 किया ना. आप लोग थोड़ा बुक में लिखो तो आपको समझेगा कि क्या किया है. पहले 3 कैपेसिटर जो है, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ पे. पहले 3 कैपेसिटर जो है, I'll just highlight it so that those who are having the confusion can see it properly. ये होता है क्योंकि यू मस्ट हैव नॉट डन सर्किट्स. रेजिस्टर्स को किया तो ये इजी होना चाहिए था. ये C/3 है. ये तीनों को मिला के C/3 आया. ठीक है. C/3 ये C के साथ कैसे गया? पैरेलल. तो 4C/3 आया. ठीक है. तो 4C/3 के साथ ये C और ये C है जो मैंने यहाँ C लिया है. समझा? जिसको पकड़ के मुझे 4C/11 आया. तो ये तीनों रेड्यूस हुआ. बचा कौन है? ये 3 बचे हैं. तो मैंने फिर 4C/11 लिया. 4C/11 लिया. अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है. ओके ओके. 4C/11 के बाद यहाँ पर कुछ है. नहीं, जो तुम लोग बोल रहे थे वो नहीं है, बट यहाँ पर C है. यहाँ पर एक C है. तो यहाँ पर हो जाएगा 4C/11 प्लस C करो. 4C/11 प्लस C करो. Before I go to the last step, 4C/11 प्लस C करो. देखो कितना आ रहा है. So 4C/11 is 15C/11. तो अभी करो वापस. CS is equal to C/2 into 15C/11 upon C/2 plus 15C/11. So अभी वापस कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 15C² अपॉन 22 अपॉन ये हो जाएगा. ये कितना है? 2 11 11 2 30 30 और 41 41 ना. 41C/22 आएगा. 22 22 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट 15C/41. अब ये फाइनल आंसर है. एक C मैं भूल गई थी. ये बीच में एक पैरेलल वाला C है, ये वाला C. तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया था. वो C में भूल गई थी. बाकी बराबर है एकदम. ये C है, ये C है. जब भी दो जो 3 वैल्यू 3 अगर सीरीज में जाता है और उसमें अगर 2 सेम है ना, तो उसको हम कंबाइन करके C/2 लिखेंगे. क्योंकि हमारे लिए इजी है ना प्रोडक्ट अपॉन सम यूज करना. इंस्टेड ऑफ डूइंग 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो हमारे लिए काफी टीडियस होगा. राइट. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि 2 को रेड्यूस करके 1 करना. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. समझ रहे? अभी तो क्लियर हो गया होगा.
वो भी करके दिखाना पड़ेगा बच्चा, ऐड करना है बेटा। C प्लस 4C/11 इस कितना आने वाला है, 15C/11 आएगा ना। ये सब MCQ क्वेश्चंस है, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। अभी 15C/11 को हम C और C कैसे गया अभी सीरीज, सो C/2 इंटू 15C/11, तो ऐसा करेंगे तो फाइनल आंसर 15C/41 आएगा। या क्लियर है? सो 15C/41 माइक्रोफैरड आपका फाइनल आंसर। क्लियर है everybody? Okay, so that's it from me today, because this is a very important part that we have done, which is covering up to type 5 of the combination questions. I hope you will practice them and will study capacitor before we go for derivations in lecture number 5. So this was lecture number 4, which is taking the combination of capacitors. Thank you and see you next time. Bye-bye.